Hi everyone, welcome to the second episode of 555 Emotions. Today we are here with a topic work-life balance for women. And to dive deep into this topic, we have some very special guests in our studio. I would like to welcome Dr. Simi Chavla Sari, Hello. a very renowned eye surgeon from our city, and Achita Agarwal Pandey, Hello. a very renowned interior designer and a founder of Emotion Designing Spaces. बिफोर स्टार्टिंग दिस पॉडकास्ट मैं ये बोलना चाहूंगा कि आज हम सब यहाँ बैठे हैं तो हमारा मोटिव ये है कि हमारे इस शो को जिस भी एज ग्रुप की फीमेल्स देख रही हैं वो जहां भी हैं और जिस भी प्रॉब्लम से स्टक है अपनी लाइफ में वो आप सबके एक्सपीरियंस के थ्रू आज हमारे इस पॉडकास्ट के थ्रू उन्हें वो सॉल्यूशन मिले, राइट? तो बिफोर स्टार्टिंग द शो आई वुड लाइक टू आस्क कि हाउ यू गाइस आर फीलिंग, कैसा फील कर रहे हैं आप लोग? आर यू गाइस प्रिपेयर्ड? Yeah, we are all prepared. Women are always prepared. Okay. Excited to share the experience, and it's always a pleasure. Okay. Wow, great. So, I would start with you, ma'am. What would you like to say this? Work-life balance. Can you please brief कि एक lady के लिए work-life balance का मतलब क्या होता है? See, there's no such perfect balance. I wouldn't say that any perfect woman lies. I would really like to meet one. The balance is just needed between the time needed to manage your things. What is important at that particular moment? It's never that you need to manage your time between work and home and kids equally. That at that particular time, what is more important is to be given time. Right? Very true. Yes, जैसे as मैम सेड कि जिस टाइम पे जो चीज जरूरी है उस टाइम पे आप कितना फोकस करके उस चीज को अपना 100% देकर के कंप्लीट करो फॉर अ लेडी और फॉर अ वुमेन, वो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है. ये जरूरी नहीं कि हम सारी चीजें मैनेज कर लें, बिकॉज वो किसी के लिए भी पॉसिबल नहीं है. और अगर हम सोचते हैं कि हम हर चीज में परफेक्ट हो जाएंगे एज अ वुमेन, तो वो भी पॉसिबल नहीं है. तो एट जिस भी टाइम पे आप हैं, जो ड्यूटी जिस समय आपको परफॉर्म करनी है, उस समय उस ड्यूटी को आप कितने सोलफुली परफॉर्म करें, दैट्स द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग. और वही कोशिश करते हैं हम लोग एज अ प्रोफेशनल, मतलब जो भी हमारा काम है, जिस फील्ड में हम हैं. ओह वाह, ग्रेट. सो आपने बहुत अच्छा आंसर दिया वर्क लाइफ बैलेंस के लिए. सो मेरा अगला सवाल ये है कि वर्क लाइफ बैलेंस करते वक्त आप लोग की लाइफ में सबसे बड़ा चैलेंज क्या आया? See, there are so many challenges, but all the time the only challenge is to overcome your guilt. The guilt of not being perfect in your profession, not giving perfect time to your profession. But if you are giving time to your profession, then your kids are being ignored, your personal life is not managed. So if you are giving time to that, you should be satisfied. The satisfaction is very important. At what time, what is needed is more important. And then, see, you can't be so passionate that, if you are being passionate and you want to be productive in your work, then you need to ignore your kids. So the balance is needed, and I feel you should not have that competitive mind that my colleagues, my husband, my other juniors, they are going far away in profession, because everybody has their own priorities. So we need to set our limits, our satisfaction, our mind. Our mind should be at peace, that we have balanced it well between our profession and personal life. What do you say? यस मैम, एग्रीइंग विथ मैम. मतलब मैम ने जो भी बात कही वो ऑब्वियसली मेरी भी वही माइंडसेट है. इसके साथ साथ आई थिंक कि एक जो थोड़ी सी प्रॉब्लम और आती है कि बीइंग अ वर्किंग वुमेन, एक लोगों का इंटरप्रिटेशन होता है कि यू आर अ स्ट्रांग वुमेन, बट एट टाइम्स आपको वो स्ट्रांग का बैगेज लेकर के ऑल टाइम चलने की जरूरत बिल्कुल नहीं होती है. कभी कभी आप किसी किसी सेगमेंट में वीक पड़ सकते हो. इट्स ओके टू बी वीक. अगर आप आज काम कर रहे हो और काम वो बहुत, मतलब ऑब्वियसली एज अ इंटीरियर डिजाइनर दिवाली का टाइम होता है, बहुत से ऐसे टाइम होते हैं व्हेन वी आर टू मच बिजी. उस टाइम पे हम घर पे ध्यान नहीं दे पाते हैं, तो इट्स ओके, कोई बात नहीं. आप इतना बैगेज लेके मत चलिए. अगर कोई पार्ट हमारी लाइफ का थोड़ा सा डल हो जा रहा है उस टाइम पे, फैमिली पोर्शन या मेरा पर्सनल लाइफ थोड़ा सा डल भी हो जा रहा है, इट्स ओके. कभी कभी हम फैमिली को ज्यादा टाइम दे देते हैं, उस टाइम पे प्रोफेशनल टाइम, जो भी प्रोफेशनल लाइफ है मेरी, वो बैक हो सकती है. तो इट्स ओके. मतलब आप अपने दिमाग पे बहुत ज्यादा का माइंडसेट, मतलब आपका जो दिमाग है वो क्लियर होना चाहिए कि वेयर डू यू वांट टू गो और किस टाइम पे आप क्या चीज को कितना टाइम देने वाले हो. दैट्स मोर इम्पोर्टेंट आई थिंक. Yeah, and at the end, you need to cheer up yourself. Like, you should be happy and satisfied with what you do.
Wow, great. So coming back to our next question, uh, what kind of gender biases have you guys faced at your home or at your working space, and how you have dealt with it? See, I would say that being a female, you should know that it's only in your mind. There are certain things professionally, if you're working good, it does not matter whether you're a female or a male. Being a eye surgeon, you're male eye surgeon or female, you'll get equal patients as much as time you can give to your profession. Again, at home, in Indian scenario, we have that setup that females will take care of the kids and the family part. So you accept it. If you're not happy with it, then you will be the only one at trouble. So Constantly complaining and all. exactly. So rather than complaining about it, just accept it and move ahead. So the balance will be better. Otherwise, all the time you'll be cribbing that, I am not able to give time. Why can't he give time to kids? So I feel it's all in your mind, how you take it as. So as far as if there would have been gender bias, then we would not have been working also. So wow, great. If you mean to say ki the acceptance is the biggest thing. Yeah. Okay. And great. acceptance for self is also the biggest thing. Hmm. How you accept it. What do you say? नहीं ऑब्वियसली ये घर वाला तो जेंडर बायस वाला प्रॉब्लम पूरा पूरा माइंड का ही है. आपको पता है कि And you've been तक lucky enough, like not to face any. Supporting husband. we will discuss it later. तो एंड प्रोफेशनली मेरे साथ तो आई हैव बीन वेरी लकी, मतलब थ्रू आउट, मतलब पेरेंट्स के साथ भी कभी फील नहीं हुआ एज अ फीमेल, मतलब मम्मी पापा का भी कभी शुरू से ही बहुत फ्री. और उसके बाद ऑब्वियसली मेरी वर्क फील्ड ऐसी है कि कभी कभी वहां पर होता है कि 200-150 लेबर्स हैं एंड आई एम द ओनली फीमेल ऑन द साइड. बट सपोर्टिव रहा सारी चीजें. मतलब पूरा आपको अपनी डिग्निटी मेंटेन करनी है. आप किस लेवल तक चीजों में ओपन हो रहे हैं, कहाँ तक आपने एक बॉर्डर लाइन अपने लिए क्रिएट कर रखी है, दैट्स मोस्ट इम्पोर्टेंट. अदरवाइज ऐसा कुछ भी नहीं है अभी की सोसाइटी में कि फीमेल या मेल में बहुत ज्यादा कोई डिफरेंस है. ऑब्वियसली आप काम अच्छा कर रहे हैं तो आप मेल है या फीमेल है, इट डजंट मैटर आई थिंक. बट जैसे अगर मैं बोलूं कि डिफरेंसेस नहीं है, तो शायद बाई सिटिंग इन मेट्रो सिटीज वी कैन टॉक दिस. बट जो सी टीयर सिटी है, डी टीयर सिटी है, वहां पे आई स्टिल फील कि बहुत डिफरेंसेस हैं और जेंडर बायसेस हैं. No, Wow. again, I would like to interrupt. Yeah. You have to change their mindset. The females have to change their mindset that you should not think that I cannot do something. See, my father believed in me, so I could go into the profession. I proved him right. My husband believes in me, so he had given me a beautiful clinic, and I'm trying to work as much as I can, but I have to manage my family also, so I have to balance it. Otherwise, if I keep working, obviously I can do good in the profession also. But keep that thing in mind that nobody is more or less, we all are equal. What do you say about it, being a male? See, being a male, I personally feel कि जो मेन चैलेंज आता है मेल और फीमेल में, कि मेल के साथ में अपॉर्चुनिटीज ज्यादा होती है और फीमेल्स को अपॉर्चुनिटीज कम मिलती है. बोथ हैव टू प्रूव. ऐसा भी नहीं है कि एक मेल है उसको अपॉर्चुनिटीज मिले जा रही है और वो प्रूव खुद को नहीं कर रहा तो अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी. बट ये बात से मैं एग्री करता हूं कि हमारी इंडियन सोसाइटी में मेल्स की अपॉर्चुनिटीज ज्यादा है. उसके प्रोज एंड कॉन्स वो हम अपने नेक्स्ट पॉडकास्ट में बताएंगे. बट अभी एज वी आर टॉकिंग अबाउट द फीमेल्स, तो फीमेल्स को अपॉर्चुनिटी कम है और कम अपॉर्चुनिटी में खुद को प्रूव करना होता है. एंड इफ शी इज एबल टू प्रूव, एक बार का ही बस गेम है, अगर एक बार प्रूव कर दिया खुद को तो फिर कोई ये जेंडर बायसेस कुछ भी नहीं होता. इन आवर केस वी आर लकी इनफ कि हमने प्रूव किया, हमारे पेरेंट्स सपोर्टिव थे, हमारे हस्बैंड सपोर्टिव हैं, हमारे लॉ सपोर्टिव है कि हम ये अच्छा काम कर रहे हैं और हम सर्व कर रहे हैं सोसाइटी को. बट बहुत बार ऐसा होता है टाइम्स जो और भी फीमेल हैं जो कि काम करना चाहती हैं, बहुत सारी चीजें हैं, तो ऑब्वियसली थोड़ा सा एक बार फीमेल के लिए एक बैकस्टेप होता है. कई सारी फैमिलीज ऐसी होती हैं, माइंडसेट ऐसा होता है कि एक बैकफुट पे रहना पड़ता है. बट अगेन अगर आप प्रूव कर रहे हैं, आपका माइंडसेट क्लियर है और आप पैशनेट इनफ हैं उस चीज के लिए, तो आप आगे बढ़ के कर सकते हैं उस चीज को. ग्रेट. तो एज वी बोथ आर मैरिड, सो व्हाट डू यू थिंक कि आपका जैसे, बट ऑब्वियस है कि पार्टनर आपका सपोर्टिव है,
तो आपकी लाइफ अच्छी हो जाती है, इजी हो जाती है, जर्नी आपकी आसान हो जाती है. बट how you guys deal with it and how you share your problems or issues with your partner, और वो कैसे help करते हैं आप, and how important is this to share this thing with your partner or colleague? Positively, my husband is always supportive. That's why I'm here today. He's always supportive financially, emotionally, or even like at work when you're feeling low. He would obviously like to take you out. Sorry to and interrupt, cheer you you said up. financially, emotionally, so why the financial part came first? नहीं, वो ना होता है ना, अपना जो पैसा होता है we used to save it, और जो खर्च करने वाले पैसे होते हैं वो financial part से. Again, I told you, any day, like if you are taking care of the family, your husband is financially more strong than you. And it's touch wood, there's never been him or me, it's always us. So Wow. that is a blessing. Wow. Lots This of is the best thing. It's always about us. मतलब हम लोग अपने को अलग अलग नहीं देखते. Yeah, never. So what you would like to say, ma'am? तारीफ सुननी है. नहीं, fact सुनना है. नहीं, फैक्ट की बात ये है कि अगेन आई विल बी डिस्क्लोजिंग कि हम मतलब मेरी फील्ड में जो भी है कि स्ट्रेस पार्ट बहुत ज्यादा इन्वॉल्व होता है. कॉन्ट्रैक्टर्स, लेबर्स, ऑल टाइम आप लेबर्स और कॉन्ट्रैक्टर्स के बीच में होते हैं, फिर क्लाइंट्स की डिमांड्स, चीजों का अपडेट, आप जिस सिटी में काम कर रहे हो उसके बहुत सारे कुछ ड्रॉबैक्स हैं. तो उस केस में कई बार आप बहुत डाउन फील करते हो. एंड बीइंग अ वर्किंग प्रोफेशनल, घर मैनेज करना है, बाहर मैनेज करना है, ऑफिस के मैनेजमेंट को पूरा ओवरऑल देखना है. उस केस में ऑब्वियसली तुम्हारा सपोर्ट बहुत ही अच्छा रहा है कि कभी भी आप डाउन फील करते हैं, देयर इज अ पर्सन जिससे आप शेयर कर सकते हैं कुछ भी. एक सुनने वाला इंसान होना चाहिए, जो कि थैंकफुली एंड बाय गॉड ग्रेस टचवुड वो है मेरे पास. Great. So, अच्छा, you guys gave very good answer of it, and so by God grace you guys have good partner. So ये भी आप लोग lucky हो इस मामले में. Not only us, I would just like to convey that whosoever is getting married or planning to get married or already having kids, if your relationship and your management and communication is good with your partner, life will go smooth, very smooth. And you need to have that personal time of communication with each other each day, be it on a walk, be it on at your dinner, be it any time. But that personal, at least 15-20 minutes of the routine, you definitely need. जैसे हम देखते हैं इंस्टा पे कि लोग घूम रहे हैं, जा रहे हैं कहीं ट्रेवल पे, वेकेशंस पे जा रहे हैं, गाड़ियां खरीद रहे हैं या जो भी चीजें हैं, तो इसका इम्पैक्ट ज्यादा किस पे पड़ता है, फीमेल्स पे, मेल्स पे? हम मेल तो मैं रिलेट कर सकता हूँ कि इफ यू आर सीइंग कि अगला कपल जो बहुत या तो बहुत खुश है, या आपको क्या लगता है सोशल मीडिया एक हमारी पर्सनल लाइफ पे क्या इम्पैक्ट डाल रहा है, पॉजिटिव या नेगेटिव, कैसा इम्पैक्ट डाल रहा है? I would again say it's the way you perceive. It does not matter. Your way of perceiving things, I say, is different. My way of putting things is different. So let people have their own life, own views. You should have that comfort between yourself and. But not everyone is not that much mature, ma'am. And I would like That's to say, what you need to be mature. That's what we need to convey. That you need to be mature to have a balanced life. Otherwise, complaining is very easy. बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे आपको अपने हस्बैंड के साथ, अपनी फैमिली के साथ ही चीजें मतलब करनी है. और आप इंस्टाग्राम पे या सोशल मीडिया पे क्या देख रहे हो, वो कुछ मतलब हम बहुत सारे ऐसे That पोस्ट is देखते हैं ना कि temporary. सोशल मीडिया पे आप देख रहे हो बहुत सारे हैप्पी पोस्ट, और एट द बैक ऑफ दैट 1 महीने बाद या 2 महीने बाद कुछ न्यूज आती है कि डिवोर्स ह्यूमर्स एंड ऑल. तो किसी भी मतलब जनरली जिसके भी दिमाग में ये सब चीजें आती हैं, या कई बार हमारे भी दिमाग में कभी कभी चीजें आती हैं कि बहुत टाइम से यार घूमने नहीं गए साथ में, कोई पिक्चर पोस्ट किया, तो ये नॉर्मल है. बट उस चीजों को कैसे, उस माइंडसेट को हमें चेंज करना है, कैसे अडेप्ट करना है, वो ज्यादा जरूरी है. वो चीज आप आना पे गलत नहीं है, डोमिनेट Obviously, हाँ, दिमाग में तो सबके आता है, पर डोमिनेट नहीं करना चाहिए. कैसे हम उससे ओवरकम कर लें, चाहे पार्टनर से बात करके, चाहे अपनी माइंडसेट को ही चेंज करके, वो ज्यादा जरूरी है. हाँ, मुझे आज भी याद है कि व्हेन आई वाज यंग तो मेरे फादर ने मुझे एक एडवाइस दी थी कि तुम्हारे सपने अगर बड़े हैं
तो तुम्हारे पास दो तरीके हैं, या तो मेहनत करो या चोरी करो, ठीक है। तो अगेन कमिंग टू योर पार्ट, कि अगर हमें सक्सेसफुल होना है लाइफ में, तो बिना किसी से कंपेयर करके हम कर भी क्या सकते हैं अपनी लाइफ को, और हम इस बात को कर रहे हैं, और ये सच में एक बहुत बड़ा इशू है कंपैरिजन। हमारी आधी प्रॉब्लम्स का जो मेन रीजन है वो कंपैरिजन है, कि हम हमेशा अगले की लाइफ से ड्राइव होते हैं। हमारे पास ये गाड़ी है तो दे आर हैविंग दैट, हम यहाँ वेकेशन में गए तो वहां जा रहे हैं, हम अपनी चीजों से खुश नहीं होते। और ये बहुत छोटा लग रहा होगा बट वेरी मेजर कभी थिंग। कभी ये वास्ट हो जाता है, आपकी चीजें डिस्कस होते थे कब हीट आर्गुमेंट में चेंज हो जाती हैं दूसरों को देख करके, दूसरों की कुछ भी चीजों को कंपैरिजन में चेंज कर। राइट, सो दैट्स द थिंग। और वी शुड नेवर कंपेयर आवर लाइफ विद अदर्स, और वी शुड बी वेरी थैंकफुल कि जो हमें मिला है वो अच्छा है और उसमें खुश रहना चाहिए हमें, और मेहनत करनी चाहिए अपने पार्टनर के साथ, कलीग के साथ, ताकि जितने भी सपने में देखे लाइफ में वो हम मिलके पूरे कर सकें, राइट। सो कमिंग बैक टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन हमारी टीम में से किसी से आया था, और वो एक यंग लेडी के थ्रू आया था क्वेश्चन ये, कि मैंने उससे बात करी तो शी वाज लाइक कि सर मुझे शादी नहीं करनी है, या उसको लगता था कि उसके जो ड्रीम्स हैं वो कहीं ना कहीं हैम्पर होंगे शादी करने से, तो नहीं करनी है। वो नॉट लाइक दैट, शी वाज लाइक कि पोस्टपोन करते हैं। और ये और भी मैंने लोगों से सुना है, अपने घर पे भी लोगों से सुना है कि यंग लेडीज से कि शादी नहीं करनी है, रुक के करेंगे, पहले करियर सेटल कर लेंगे। तो आपको क्या लगता है कि उनका डरना शादी से कि उनकी ड्रीम्स कॉम्प्रोमाइज हो जाएंगे, या उन्हें कुछ सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, आप उन यंग लेडीज को आप लोग की क्या एडवाइस है? Over to you. मेरा तो थॉट प्रोसेस ये है इसमें ना कि डोंट फेक योरसेल्फ। पहला, अगर आपकी शादी हो रही है और आप मतलब वर्किंग है पहले से, और आप इस बात से डरते हैं कि शादी के बाद आपका वर्किंग करियर थोड़ा सा हैम्पर हो जाएगा या चीज, डोंट फेक योरसेल्फ। अगर आपका वर्क लाइफ है, स्ट्रांग है, आप काम कर रहे हैं, तो चीजों को पहले डिस्कस करिए। इट्स नॉट लाइक कि आप शादी के बाद अचानक से आपको कोई रोक देगा। जैसा आप अपने आप को प्रिटेंड करेंगे, ये मेरा व्यू है। कई बार चीजें एडवर्स होती हैं ऑब्वियसली बहुत लोगों के साथ, तो ये बोलना थोड़ा सा इजी हो जाता है, बट जितना आप जैसे अपने आप को प्रिटेंड करेंगे वैसी चीजें एक्सेप्ट की जाएंगी। तो वही ना, अगेन बैलेंस, कि अगर हमें शादी करके हमें काम करना है तो ऑब्वियसली यू हैव टू बैलेंस। सिर्फ काम को ही हम फोकस नहीं कर सकते हैं। नहीं, Another thing is, I would just like to say, when I got married, I was doing my MS. So I knew what is going to happen next, and I had to go for my fellowship. I also had many dreams. I'll go out, go to South and do it from the best institute. But when I got married, I came here. Whatever opportunity I got, I accepted it as a, I thought that is the best for me. And whatever you do, yes, positively. If you think that things are not going to be same when you get married, it's not so. But if your family and partner are supportive, you can always go ahead in your career. But the time, there's time for everything. There's time to get married. There's time to have kids and time, which I always say. So things will move on. Life moves on. Like when I had my kids again, my career was at peak, but then you need to manage that. And I feel करियर तो चलता ही रहेगा, बट जो मैरिज का टाइम है, जो किड्स का टाइम है, दैट विल नॉट चेंज, एंड यू विल हैव प्रॉब्लम्स, देन योर प्रॉब्लम्स विल mislead your career. So it's better that let things fall in place and just manage it positively. ग्रेट। मींस चीजें बदलती तो हैं, और मुझे लगता है कि आई वुड लाइक टू से कि वो यंग लेडीज की बात हो या यंग गाइज की बात हो, शादी के बाद चीजें बदलती हैं। और अगर आप ये सोच रहे हो कि नहीं बदलेंगी तो फिर आप गलत हो, बदलती हैं। अब वो हेल्दी वे में बदले, ये हमारे ऊपर कितना आप एक्सेप्ट कर लेते हो उस चीज को, Yes. उस चेंज को किस तरीके से आप एक्सेप्ट कर रहे हैं, और उस चीज में आप एक्सेप्टेंस को मैनेज कर रहे हैं, वही मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज है। हाँ, बिकॉज लाइफ तो हर स्टेज से बदलती है। Yes. व्हेन वी वर किड्स, जब हम स्कूल जाना शुरू किए, हम कॉलेज जाना शुरू किए, वर्क हम- लाइफ जब हम ऑफिस में होते हैं, हम अपना वर्क शुरू किया हमने, तो चैलेंजेस तो हर स्टेज पे आते हैं। एंड इट्स जस्ट अ चेंज, दैट्स द थिंग कि आप चीजों को कैसे एक्सेप्ट करते हो। एंड
पर्सनली मुझे वैसे ही लोग पसंद भी हैं कि जो बोल्ड है, जो चेंजेस के लिए रेडी है। इट्स माई लाइफ, आई टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी, और मैं मेल हूँ या फीमेल हूँ, आई विल टेक स्टैंड, क्योंकि मुझे अपनी लाइफ अच्छी करनी है, And मुझे अपनी what if फैमिली अच्छी things करनी है। get better? शादी के बाद what if things get better? ये भी तो चांसेस things होते हैं get कि आप better. और खुल के काम करते हो, आपके पास चीजें सपोर्ट हो गया, आप और फ्रीली काम कर सकते हैं। राइट राइट। तो ये थॉट प्रोसेस आना भी गलत है हमारे तो पॉइंट ऑफ व्यू से। नहीं, बात गलत या सही की नहीं है, बात आती है, आती है। बिकॉज देयर इज नोबडी टू गाइड देम, राइट। और जैसे कुछ थॉट्स आज हम बैठ के बात कर रहे हैं बिकॉज हम चीज को एक्सपीरियंस कर चुके हैं, है ना, बट वो एकदम रॉ है उस स्टेज में, तो बहुत सारे क्वेश्चनीज दिमाग में आते हैं उनके, तो बट आई गेस कि उनके लिए ये अच्छा एक आंसर होगा जो आप लोगों ने दिया, एंड या ग्रेट। सो मूविंग फॉरवर्ड, वैसे तो इस दुनिया में ऐसा कोई है नहीं सो सेल्फ डाउट ना होते हो, बट मैं आप लोग से जानना चाहूंगा कि आप लोग कभी सेल्फ डाउट होते हैं, और अगर होते हैं तो हाउ यू गाइज लाइक ओवरकम इट। ओवर टू यू अर्चिता जी। सेल्फ डाउट तो बहुत बार होता है, और जब भी हम वीक पढ़ते हैं तो सेल्फ डाउट तो होता ही है, सभी को होता होगा। मतलब घर आओ तो लगता है कुछ ये ना मिस हो गया हो, जब ऑफिस जाते हैं तो कुछ घर का नहीं छूट गया है, या टाइम देना किसी को भी, या कुछ नया स्टार्ट करना है उस टाइम पे सेल्फ डाउट करना है नहीं करना है, या कुछ नई चीजें ऑप्ट करने वाले हैं उस टाइम पे सेल्फ डाउट होता है, ऑब्वियसली ऑल टाइम ही होता है। उससे मेनली ओवरकम जो हम लोग करते हैं, या मेरा पर्सनल व्यू है, ओवरकम क्या करना है, आपको मालूम होना चाहिए कि इससे क्या मतलब इससे बेटर कुछ और कर नहीं सकते हैं। मतलब जो बेस्ट कर सकते हैं वो करिए आप, उसमें उसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। तो ऑब्वियसली करने के बाद जो रिजल्ट मिलेगा वो ऑब्वियसली सेल्फ डाउट से तो अच्छा ही होगा। तो इसके ऊपर में थोड़ा सा सोच करके सेल्फ डाउट को थोड़ा कीप असाइड करके जो काम आगे करना है वो करने की कोशिश करते हैं। ओवरकम लाइक कैसे करते हैं इससे आप, लाइक यू गो थ्रू सम बुक्स और व्हाट? हाँ, थोड़ा सा बुक्स पढ़ना, डिस्कस करना आपके साथ में चीजों को, जो भी चीजें थॉट्स आ रही हैं, कभी कभी नेगेटिव थॉट्स आते हैं बहुत सारे, तो सबसे हेल्पफुल होता है कि पार्टनर के साथ डिस्कस कर लो। गुरु भी है आपका सब लोग? नहीं, कोई गुरु तो नहीं है, और नहीं, वो आपका नाम सुनना चाह रहा है। I think in self-doubt, it's more important to discuss it with your friends rather than your husband, because you know she'll motivate you more. She'll You say agree with that she'll always Then remind obviously, you yeah. of your positive things in life and aspect, and she would even cheer you up for things what you're not able to do. So like let it be, हो जाएगा यार, काम कल हो जाएगा, इतना क्या stress? But don't you think मैम कि आप बोला कि फ्रेंड तो सबसे पहला फ्रेंड आपका पार्टनर होता है? Yeah, that's true, but at बट times वो he ज्ञान might के not- फॉर्म में है, मतलब जो he राय might मिलती है not वो ज्ञान के फॉर्म understand, में na? मिलती है। He would- फ्रेंड के साथ थोड़ा लेट इट गो वाला भी मिलता है। And see, ठीक है, फ्रेंड से ले लगी बस। What do you would say? I would just say, anytime, like anybody whosoever can cheer you up for the things like, आज ये नहीं हो पाया, वो नहीं हो पाया, बच्चे कैसे देखे, उनका नहीं पढ़ा पाए, या फिर काम ठीक से नहीं हुआ, सर्जरी कर रहे थे तो बच्चा छूट गया, उसका ट्यूशन लेट हो गया, ये तो सबकी लाइफ में होता है। तो आज मैं नहीं कर पाई, कल थोड़ा और बेटर सोच के कर लेना, बट आज जो नहीं हो पाया उसके लिए आप परेशान होके why take that mental stress? And it is very important these days to have a peaceful mind rather than having a good body. You need to have, at the end of the day, you should be able to sleep well, have a good mental health. So it should not affect your mental health in the way that I couldn't do this, I couldn't do that. Things go on. Like even if you were not there, it was going on. So just try to give it better the very next time, but don't feel low about it. That's what I feel. I would like to say, मैंने एक बुक पढ़ी थी जिसमें जिक्र था एक स्मॉल बॉय हॉर्स इन अ जंगल। तो वो सेल्फ डाउट में मुझे याद आया कि एक छोटा बच्चा है और एक हॉर्स के साथ जंगल में जा रहा है, और मिडनाइट का वक्त है, और वो बच्चा बहुत डर गया है। तो वो डर के हॉर्स से बोलता है कि मैं बहुत डरा हूँ और मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा लाइफ में क्या करूँ। तो हॉर्स बोलता है कि तुम्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कैन यू सी योर नेक्स्ट स्टेप? तो बोलता हाँ, तो बोलता टेक इट। तो सेम गोज हियर ऑल्सो कि ऐसा कुछ हम बहुत स्टक है, तो उस वक्त हमें अपना अगला जो स्टेप दिख रहा है वो लेना चाहिए सिंपली, एंड दैट्स द बेस्ट थिंग टू लाइक ओवरकम दिस सेल्फ डाउट एंड ऑल।
और इसमें ना एक चीज ऐड करेंगे कि एक चीज शुरू शुरू में ऑब्वियसली शादी के बाद ये कुछ कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं कई बार कि आप कैसे मैनेज कर रहे हो चीजों को, और जब आप फुल टाइम वर्किंग हो उस टाइम पे नितिन ने एक बात कही थी कि जो भी तुम कर रही हो उसको अपना बेस्ट दो, जो तुम्हारे कंट्रोल में है। ये सबसे जरूरी है, और इस चीज को मतलब हम तो अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा रिलेट करते हैं कि जिस टाइम पे हम जो कर रहे हैं, जो मेरे कंट्रोल में है, अगर ये काम करना मेरे कंट्रोल में है तो आप उसमें अपना बेस्ट दीजिए, बाकी सारी चीजें ऑटोमेटिकली वो अपने आप प्लेस पे आ ही जाएगी। तो ये चीज बहुत जरूरी है कि जो आपकी कंट्रोल में है उसको आप प्रॉपरली करिए, बाकी तो फिर चीजें हैं वो चलती रहेंगी कुछ ना कुछ। Great. And I would also like to add something कि and I would like your feedback also कि जैसे हम जब भगवान की बात करते हैं और हम स्पिरिचुअलिटी की बात करते हैं, तो एक जनरेशन है हमारी हमारे बीच में जो इसको बहुत लाइटली लेती है और बहुत सीरियसली एंटरटेन नहीं करती है। तो मुझे लगता है कि अगर इफ वी हैव टू ग्रो इन आवर लाइफ, तो वी शुड बी वेरी थैंकफुल इन आवर लाइफ, एंड वी शुड बी लाइक थैंकफुल टू गॉड कि जो हमें उन्होंने दिया है, बिकॉज एवरीथिंग इज क्रिएटेड बाय हिम। तो what you would like to say to the young ladies or the young guys over there जो like क्या रोल है, like आपकी लाइफ में क्या रोल है स्पिरिचुअलिटी का, और ये होता है भी या नहीं होता है, like what you say on it, ma'am? What I feel, I think you all know I'm very spiritual, and whenever like I do a smallest procedure, I always just close my eyes for a moment, and I thank God for it, and to help me in completing it in a positive way. And that's what I teach my kids also. And I think my morning starts with prayers and the day ends with singing a prayer for my kids before sleep or something. And it's very important. You should be thankful. That will create a very positive vibration around you and you'll feel more motivated to work. So, getting things is not easy. You must know that who is giving you all this. Wow. स्पिरिचुअल होना तो बहुत जरूरी है, और जितना कि मैम को हम जानते हैं या मेरे पार्ट में जितना भी वर्किंग हो लो, बट जब आता है टाइम पूजा पाठ का या कोई स्पेशल ओकेजन, और हम दोनों के पास ही लड्डू गोपाल जी भी है, तो भगवान तो मतलब वो जो एक सोर्स है जैसे सारी चीजें हो रही हैं उनको कहीं भी हम लोग मिस नहीं कर सकते हैं। अभी यहाँ पे भी हम लोग आए बैठे तो एक मन में होता है ना कि हाथ जोड़ करके जय श्री नाथ जी महाराज, जो भी चीजें हो रही है वो अच्छे से हो, वो स्मूथली रन करें, उसके लिए आपका एक कनेक्ट होना जरूरी है। वो वाया पूजा में बैठकर मंदिर में हो, कनेक्शन आपका मेडिटेशन के थ्रू हो, नाम जप के थ्रू हो, किसी भी फॉर्म में हो सकता है वो, या डिस्कशन के थ्रू, मतलब वो चीज तो स्पिरिचुअल ऑल टाइम आपकी लाइफ में रूटीन में होना जरूरी है, और हम लोग उसको फॉलो भी करते हैं। So the gist will be like कि जो हमारी यंग जनरेशन देख रही है इस पॉडकास्ट को कि there is a power which is like looking forward to everything. So you need not to be very like disturbed or depressed. ये बस एक phase है. You have to trust the Almighty and you have to work hard, and things will be like okay. Fall in the right place. Yeah, exactly. आपको बस एक ट्रस्ट होना चाहिए in उसके ऊपर भी। yourself हाँ, हाँ। and in your destiny. Don't always crib that this was written in my destiny. No, there's something better beyond that. So believe in that. रेगुलरली उसके लिए काम करिए, आप मेंटली प्रोफेशनली जिस भी फॉर्म में हो सकता है उसके लिए काम करिए, गिव अप नहीं करना है कभी भी, गिव अप तो कोई ऑप्शन ही नहीं है। And there's no savior than hard. Like hard work is the key to success, which you have been learning since childhood, and it is the key to success. Wow. And his plans are always better than our plans. Right? Yes. So, our moving forward, जो मुझे आसपास में देख पा रहा हूँ सोसाइटी में अपनी, कि जो ये यंग जनरेशन है, स्पेशली फ्रॉम 20 to 25, 26, इस एज ग्रुप के जो लोग हैं, चाहे वो गर्ल हो या बॉय हो, करियर एक बहुत बड़ा सवाल है लोगों के लिए। और करियर में जैसे अपनी क्वालिफिकेशंस लेने के बाद जब हम फील्ड में उतरते हैं तो उस दिन से असली लड़ाई शुरू होती है।
हमें लगता है कि हम मेन लड़ाई वही थी, बट वो तो कुछ नहीं था, है ना। मार्केट। अब जब हम उतरते हैं मार्केट में तो मेन लड़ाई शुरू होती है। उसके बाद जैसे फॉर एग्जाम्पल जैसे मैम यूर डॉक्टर, तो आप पढ़ाई करके आ गई, अपना क्लिनिक खोलना, वो उसकी मेंटेनेंस चार्जेस, अपने कंपाउंडर स्टाफ कलीग्स रखना, फिर उसकी मार्केटिंग करना, है ना, ये सब प्रोसेस जो होता है। फिर उसके बाद पेशेंट्स आना शुरू हो जाते हैं, तो फिर एक ये कि एम आई डूइंग गुड और नॉट, मैं होता ना कि ह्यूमंस आर नेवर सेटिस्फाइड, राइट। तो मैं सही कर रही हूँ नहीं कर रही हूँ, या कोई मेरे से जल्दी आके ज्यादा प्रैक्टिस कर रहा है ना। सेम गोज विथ यू कि इफ यू आर डूइंग प्रोजेक्ट्स, तो कोई ऐसा है जो हमारे एज ग्रुप का हमसे ज्यादा प्रोजेक्ट्स कर रहा है, या ये ओवरऑल जब हम बात करते हैं, इस माइंडसेट को कैसे हम ओवरकम करें, कैसे हम अपने फोकस को श्रिंक करके डिट्टो टॉपिक्स पे रखें, और कैसे हम खुद पे फोकस करके लाइफ को आगे बढ़ें, ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है आज की डेट में। तो आप लोग का, एज योर गाइज एक्सपीरियंस, तो आप लोग का सी क्या है इसमें कि हाउ दिस थिंग शुड बी डील विथ? See, no doubt, definitely at times you feel that you've started your own work, but you're not able to put up your best. But there's a reason. The way, because I started my own clinic because I had young kids and I knew that I need to give more time to them. And yes, at times it is frustrating that you're not able to work well, or you're not able to get as much as patients as your colleague is getting. Don't compare. That's what I said. See what you are able to do and why you're doing that. You're giving less time to clinic, more time to kids because they are young. At that point of time, you need to nurture them also. So you completely, you cannot ignore them. But with the same at the same time, your work should also not be compromised. You can't stop working. Keep working, go with the pace, and there would be a time when you can go with a better pace, because that time your kids will be young enough to take care of themselves. But yes, don't give a pause to anything, to your work or to your kids. You need to balance. You cannot sit for 2 years and then you start practicing. You can manage by giving time to डिवाइड द time, रेशियो एंड yeah, ऑल की yeah. किसको कितना। What do you say? नहीं, ये एक पॉइंट तो मैम का जेन्युइन है ही। और मतलब अगर स्क्रैच से बात करें क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली, हम लोग जो यंग बॉयज एंड गर्ल्स हैं उनके साथ जो अभी प्रॉब्लम आ रही है, हम लोग अभी एक ऐसे स्टेज पे आ सकते हैं कि वे हैव टू ओनली मैनेज। अभी हमारा काम जो है जॉब लाइन है वो हमारा मैनेज करने का है, कितना माइंडसेट क्लियर रखें। बट यंग जनरेशन में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि हमारी फील्ड में या मैम की भी फील्ड में हमें लगता है कई बार ऐसे यंग बच्चे आते हैं जिन्होंने अभी फ्रेशली कोर्स किया है और उनका डायरेक्शन क्लियर नहीं होता है। जो सबसे मेन प्रॉब्लम आती है कि उनका डायरेक्शन क्लियर नहीं है। वो ऑफिस में आते हैं तो एक दो जो पॉइंट्स है जो अभी के बच्चों के साथ हम देख रहे हैं होती है, जो हमारे इंटर्न्स है, कि मतलब उन्हें इजिली और बहुत क्विक डिसीजन लेना है किसी भी चीज को आगे करने के लिए, बिकॉज इट्स नॉट वेरी इजी टू बीइंग अ प्रोफेशनल। कि आपको मतलब प्रॉपर कंसिस्टेंसी चाहिए, कहीं तक भी पहुंचने के लिए आपको कंसिस्टेंसी चाहिए। अभी हम लोगों को वर्किंग होते हुए काफी टाइम हो गया है, एंड इवन नाउ वी आर डेली, मतलब हम अभी भी डेली हसल कर रहे हैं चीजों में। ऐसा नहीं कि हम बहुत स्ट्रांग हैं और एक मार्केट में हमारा नाम बन चुका है तो हमें कुछ करना नहीं है। डेली नए लोग आ रहे हैं, पुराने अच्छा कर रहे हैं, मतलब सभी मेहनत कर रहे हैं, तो डेली आपको हसल करना है। तो आप मतलब उसके लिए पैनिक या बहुत ज्यादा रश नहीं कर सकते हैं। अगर आप किसी भी वर्क प्लेस में गए हैं एज अ इंटर्न, टेक योर टाइम, गिव देम टाइम ऑल्सो। आप अपना 100% दीजिए, बी कंसिस्टेंट। मतलब अगर आपको एक ड्राइंग बनाने को दी गई है या एक किसी भी टर्म में जिस भी आप फील्ड में कुछ दिया गया है, तो गिव योर 100%। जहां पर जिस समय है, बी वेरी क्लियर एंड बी वेरी पर्टिकुलर कि वहां पर 100% पहले देना है। आगे क्या होगा, कब खोलेंगे, कैसे होगा, हम इस स्टेज पे कब पहुंचेंगे, बहुत अर्ली भी इस चीज को सोचना थोड़ा सा नेगेटिव हो जाता है बच्चों के लिए, जो कि हम लोग अपनी फ्रीक्वेंटली ऑफिस लाइफ में देख रहे हैं इन चीजों को। थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा, लर्निंग थोड़ी सी इंक्रीज करिए, क्योंकि आप कितना भी कोर्स करके आते हो, कुछ भी कर लो, प्रैक्टिकल फील्ड एंड मार्केट ये मेन है। आप इसमें कितनी अच्छी तरीके से अपने आप को प्रूव कर रहे हो, दैट इज द मेन थिंग। कि आप मार्केट में कैसे प्रेजेंटेबल होना, चीजों को डिस्कस करना, क्लाइंट ब्रीफिंग, लेबर हैंडलिंग, सुपरविजन, एवरीथिंग, दिस इज द मेन। और इसको सीखना पड़ेगा, ये प्रैक्टिस से ही आती है चीजें। एक्चुअली
सो बेसिकली जैसे आप लोगों ने कहा कि प्रॉब्लम कम्स व्हेन वी स्टार्ट कंपेयरिंग आवरसेल्फ विद अदर्स। हम जब अपनी प्रैक्टिस शुरू कर रहे हैं या हम प्रैक्टिस थोड़ी इनिशिएट भी कर चुके हैं, तो हमें ये नहीं बोलना चाहिए था कि हमने स्टार्ट क्यों किया इस चीज को। हमारा मोटिव ये नहीं था कि हम ऐसी जगह पे काम करेंगे कि या इस स्टेज पे काम करेंगे कि हमसे बेटर कोई नहीं होगा। देयर विल बी ऑलवेज समवन जो हमसे अच्छा कर रहा होगा। ठीक है, तो हमें किसी को खुद को कंपेयर नहीं करना है। वी जस्ट हैव टू लाइक गिव आवर बेस्ट एंड लीव द रेस्ट। या सो फाइनली इट वाज अ ग्रेट एक्सपीरियंस टॉकिंग विद यू गाइस। और पता ही चला कैसे इतना टाइम बीत गया। एंड आई वुड लाइक टू थैंक यू गाइस कि आप लोग कैसे इस वर्क लाइफ बैलेंस को जस्टिफाई कर रहे हो और यू आर लाइक लीडिंग योर फैमिली इन अ ग्रेट वे एंड यू आर लीडिंग योर वर्क इन अ ग्रेट वे एंड यू गाइस आर हैविंग अ गुड नेम इन अ सिटी। और एज आई नो मैम यू पर्सनली ऑल्सो आई एम सीइंग कि कैसे आप एंड आई एम वेरी सीरियसली आई एम सेइंग कि कैसे आपने इतना कुछ देखा और चीजों को इतनी स्मूथली मुस्कुराते हुए, मतलब जो आपको बहुत डीप नहीं जानता होगा वो समझेगा ही नहीं कि इट्स अ पॉइंट टू लर्न फ्रॉम हर कि मतलब एक इतने शहर की इतनी बड़ी डॉक्टर, हस्बैंड भी शहर के इतने रिनोन डॉक्टर, प्लस साथ में किड्स को मैनेज करना। और मैंने तो कई बार पर्सनली भी देखा है कि जब भी घर भी जाओ तो सारी चीजों सबके लिए मतलब एट द प्लेस चीजों को फिट करना। मतलब एक्चुअली मैं एक चीज और इसमें ऐड करूंगा, जब बड़ा नाम आता है ना, रिनाउंड जब नाम आता है तो वहां पे ना अकाउंटेबिलिटी और बढ़ जाती है ना। क्योंकि जैसे बोला ना कि प्रैक्टिस इनिशिएट करना चैलेंज है, बट स्टेज पे आके उसको मेंटेन रखना, जस्ट लाइक शाहरुख खान बात करते हैं लाइफ सर्कल कि आप ओरिजिन इज अलग है, बट जब ग्रोथ एंड स्टेबिलिटी जब आती है तो स्टेबल रहना सबसे मेन पॉइंट होता है कि आप जिस स्टेज पे हैं इस समय उस जगह पे उस चीज को मेंटेन रखना वो सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे टफ। आई रेड समवेयर कि बना हुआ शाहरुख खान सबको पसंद है, पर बनता हुआ शाहरुख खान कोई बनना नहीं चाहता है ना। तो वो स्ट्रगल का जो फेज होता है, राइट। सो एनी फाइनल मैसेज टू द यंगस्टर्स which are watching our shows? ऑब्वियसली जब भी टाइम मिले स्टार्ट करो, सिर्फ यंगस्टर्स के लिए नहीं। स्पेशली मेरा मैसेज तो आज फीमेल के लिए कि अगर कभी आपको लगता है किसी को देख करके कि यार बहुत अच्छा काम कर रही है, मेरे अंदर ये क्वालिटी थी, तो अभी बहुत लेट नहीं हुआ है। कभी भी किसी भी चीज से स्टार्ट कर सकते हैं। अगर मेरी स्किल्स बहुत अच्छी थी अपने टाइम पे, स्कूल टाइम में, कॉलेज टाइम पे, और अभी शायद 4 to 5 years या 10 years भी वेस्ट हो चुके हैं, वेस्ट नहीं बोलेंगे, सॉरी, वेरी सॉरी, इन द सेंस कि हमने फैमिली को टाइम दिया, उस समय चीजों को नहीं स्टार्ट कर पाए फॉर इट वुड बी एनी रीजन, तो कभी भी लेट नहीं हुई है। कुछ किसी भी चीज से हम स्टार्ट कर सकते हैं, मतलब बच्चों को ट्रेनिंग देने से ही या अपने पर्सनल बुक्स पढ़ने से ही, किसी भी तरीके से हम अपने आप को नर्चर कर सकते हैं। कभी भी किसी चीज के लिए फॉर अ फीमेल लेट नहीं होता है। तो अगर आपके अंदर कोई क्वालिटी है तो प्लीज उसको टाइम दीजिए और फिर से उसको वापस से रिलीव करिए। अपने अंदर इस थॉट को लेकर के एक एज के बाद हम नहीं कर पाएंगे, उस चीज को लेकर के खत्म करने से अच्छा है कि आप फिर से अपने अंदर उस चीज को टाइम दीजिए, मैनेज करिए, चाहे वो किड्स हो चाहे फैमिली हो। अपने हस्बैंड को समझाइए, फैमिली को समझाइए, खुद को टाइम दीजिए जब भी हो पा रहा है, मॉर्निंग में, इवनिंग में, बट टाइम दीजिए और उसको स्टार्ट करिए। इट्स नेवर टू लेट। इट्स नेवर टू लेट। Ma'am? I would just like to conclude on the topic that always try to maintain that balance which is needed. I teach my daughter also that balance is needed between studies and play, and for everything you do, for eating healthy or eating junk food, everything. You can't just keep going in the same direction, whether it is right or wrong. Life is not like there are not two roads that this is my personal life and that is my professional life. So it's not a turn. You are just going hand in hand. So just be happy and go ahead with positivity. Everything will fall in place. Wow, great. So guys, I hope आपको हमारा ये एपिसोड बहुत पसंद आया होगा और हमने हर वो कोशिश करी कि जिससे हम इस टॉपिक पे डीप डाइव कर पाएं और हम जान पाएं कि वर्क लाइफ बैलेंस कैसे करते हैं, और यंग लेडीज को या वर्किंग प्रोफेशनल्स को जो जो इश्यूज आ रहे हैं उसके सॉल्यूशन पे हमने अपने गेस्ट से डीप पे बातें करी, और आई गेस कि आप सब रिलेट भी कर पाए इन चीजों से। हमारा मोटिव सिर्फ यही है कि हम हर एपिसोड में कुछ ऐसा कर पाए जिसके थ्रू हम सॉल्यूशन प्रोवाइड कर सकें सोसाइटी को, चाहे वो प्रोफेशनल्स हो, चाहे वो कोई भी सेगमेंट हो। एंड
I promise ki we'll keep working hard on that. Till then, thank you so much for watching, and we'll be back soon with our next episode. Thank you so much. Have a good day. Bye bye.